everyone, I welcome you all once again on your own channel Geo with Madhur guys, and today I am going to start the second part of chapter number 1 Civics class 10th power sharing। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी सुनाई, वहां पर पावर शेयरिंग कैसे हुई थी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में कि कंट्री में कैसे पावर शेयरिंग होती है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द मोरल रीजन एंड द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे बच्चों दो रीजन होते हैं। There are two reasons behind why the power sharing is desirable in democracy, especially the moral reason and prudential reason. Now the very first reason for sharing the power is the prudential reason. Now why it is called prudential? Because it is taken by calculating everything. Okay, see, sharing power is always in the favor of government. If you share the power, people feel equal, and then people do not have any problem with the other community. If you give the power to all the communities, all communities feel that they are respected and they have no problem, they have the equal rights. Okay, सोसाइटी में सबके पास पावर हो तो सबको ये लगता है कि हम सब बराबर हैं, तो उनके बीच में कोई भी परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर आप पावर को शेयर नहीं करेंगे इक्वली, इफ यू विल नॉट शेयर द पावर, तो कुछ कम्युनिटीज को ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, तो वो वॉयलेंट हो सकते हैं, वो मूवमेंट चला सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही डिसाइड किया जाता है कि पावर शुड बी गिवन इन द हैंड ऑफ एवरीवन एंड एवरीवन शुड हैव द पावर सो दैट एवरीवन फील ओके। हाँ, इनिशियली अगर हम श्रीलंका का एग्जांपल देखें तो ऐसा माना जा सकता है कि भाई मेजॉरिटी के हाथ में पावर रहेगी तो माइनॉरिटी क्या कर लेगी, लेकिन हिस्ट्री सेज के लॉन्ग टर्म में ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो इट कैन बी हार्मफुल टू हैविंग द पावर इन द हैंड ऑफ मेजॉरिटीज ऑलवेज, व्हिच हैपेंड इन श्रीलंका। ओके, दूसरा जो रीजन है गाइस, दैट इज मोरल रीजन एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रीजन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड मोरल? बिकॉज नैतिकता के आधार पर पावर शेयर करना जरूरी है। जो लोगों के लिए डिसीजन लिया जाना है, जो डिसीजन लिए जाएंगे और जिन लोगों पे वो डिसीजन थोपे जाएंगे, तो वो डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करने का, उनको इलेक्ट करने का राइट लोगों के हाथ में होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होती है, लोगों के हाथ में वोटिंग राइट्स होते हैं, तो जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं उनके लिए उनको उन्होंने ही चुना है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नाउ पावर इज इन आवर हैंड, we are electing our representative and these representative are taking decision on behalf of us। तो वहां पर भी morally मैं कहूं this is the soul of the democracy। Sharing power is the soul of democracy, because if you are not sharing the power equally among all the people, then this is not a democratic government, that is not a right type of government system। So these are the two reasons, moral and prudential। यह सबसे पहला है prudential and then the moral reason why the power sharing is desirable, and both reasons are for the good and welfare of the people। एक कैलकुलेटेड मेथड के थ्रू पावर शेयरिंग करता है और एक क्योंकि पावर शेयरिंग होनी चाहिए इसलिए पावर शेयरिंग करता है। दोनों का एम बराबर है, सेम है। ओके, here comes to the end of this topic guys। So now guys, let's move on to the next topic, and that is the last topic of this chapter number 1, power sharing, is the forms of power sharing। Guys, for the long period of time it was believed that the power should remain in the hand of some people at some place, and the concept of power sharing is just opposite of that concept। The new concept of power sharing says that the power should be shared among the different people। Power should not remain in the hand of few people and it should not remain at one place। ऐसा माना जाता है कि पावर का जो रियल सोर्स है वो there are the citizens of the country, people of the country, तो पावर उनके हाथ में रहनी चाहिए। जबकि पहला ऐसे माना जाता था कि to take the fast decision, to take the accurate decision, power should remain in the hand of some people or at one place or two place only। बट अब धीरे धीरे जो न्यू डेमोक्रेसीज आई है, जो न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है, इसमें पावर कई लेवल पर डिवाइड होती है और हम आने वाले टॉपिक में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट एट विच लेवल द पावर इज डिवाइडेड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है पावर शेयरिंग का। अब इस पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली क्या है कि एवरीवन हैव द वॉइस इन द डेमोक्रेसी। आज के टाइम में हर इंसान की अपनी आवाज है और उनको बोलने का हक है, इसी के लिए सबके पास पावर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हमारी कंट्री में या मैं बात करूं आज के टाइम में 4 मेथड हैं। देयर आर 4 मेथड्स इन विच द पावर इज शेयर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1, या किस तरीके से अलग अलग लेवल पर पावर शेयर होती है, हम उनको एक एक कर अब देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, द पावर शेयरिंग इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, now what happened in this guys,
the power is shared equally among the different organs of the government. Now guys, you know that there are 3 organs of the government: legislature, executive and judiciary. ये तीनों ही equal power रखते हैं guys. They are not vertical, they are horizontal. ये एक दूसरे के बराबर में है, parallel हैं. तीनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं, और तीनों ही अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते. एक ऑर्गन अगर पावर का अनलिमिटेड यूज करता है तो दूसरा उसको चेक कर सकता है, रोक सकता है. ओके, जैसे लेजिस्लेचर है, दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली. ओके, एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. कहने को जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, but at the time they can control the work of executive as well as the legislature. So they can judge the work of both these organs. There is parliament which can ask the question from the legislature also and sometime from the executive also. तो यहाँ पर equal power sharing होता है. ये तो हुआ पहला example, sharing of power at the different governments organ. Second power sharing example is the sharing the power at different government level. Power can be shared among the different level of government. Now how the different level? We have 2 level of government guys in India. Okay, basically अब बेल्जियम का हमने एग्जांपल देखा, जैसे कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. ओके, हमारी कंट्री में भी 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जिसे यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट जिसे हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है. तो यहाँ पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई है, और उस पावर को बांटने का जो काम करता है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इन इंडिया the state government is not subordinate, do not take the order from the central government. कुछ राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, बट मैक्सिमम जो पावर्स हैं दोनों ही गवर्नमेंट के पास वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देती, पावर कम्स फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन. या बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ही है, वही पूरे देश को चलाती है. और हम इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को सेंट्रल स्टेट और भी नीचे लेके जा सकते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, यहाँ हम कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे पंचायती सिस्टम या फिर आपका जो वार्ड सिस्टम की गवर्नमेंट बनती है, तो उस 3rd लेवल तक हम अपनी पावर को शेयर कर चुके हैं. ओके, सो ये हुआ सेकंड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज द शेयरिंग ऑफ पावर एट द डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल. नाउ उसके बाद जो 3rd पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है गाइस, दैट इज द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कंट्री के अंदर कभी कभी लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बेसिस पर भी पावर शेयर की जाती है. जैसे पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर कुछ रिजर्वेशन है, कुछ एससी और एसटी लेवल पर कुछ रिजर्वेशन मिलता है, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ताकि वो कम्युनिटी के हाथ में भी पावर आए. बिकॉज अगर वो रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता है तो हो सकता है कि उनका इक्वल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में नहीं हो पाएगा. तो ऐसे सोशल ग्रुप्स को भी कभी समटाइम विमेन्स, अब जैसे कि जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायत लेवल में विमेन रिजर्वेशन है 33%. ओके, हो सकता है उस रिजर्वेशन के बिना विमेन्स पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट ना कर सके. तो ऐसी पावर शेयरिंग के लिए भी हमारे 3rd लेवल में अरेंजमेंट किया गया है, दैट इज अ शेयरिंग ऑफ पावर among the different social groups. जो कम्युनिटी के पिछड़े हुए लोग हैं, those who are backward are given special provisions, special rights, special powers to overcome their problem and to join the mainstream. और ये जरूरी भी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है ये लोग अपने आप को बिल्कुल अलग फील करें. दे मे फील द एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री, दैट दे आर नॉट, जैसा कि तमिलियंस के साथ हुआ श्रीलंका के अंदर. तो वैसा ना हो, उसका अरेंजमेंट हमारी कंट्री में किया गया है. Okay, so there is a provision of sharing the power among the different social group. Let it be on the basis of religion, language, culture, gender. Okay, this is important. The 4th category of power sharing is the sharing the power between the political parties, pressure groups, and movements, guys. Basically, आज के time में in contemporary democracy, guys, what happen? People have the right to choose their representative. And the same time the people have the right to fight the election also. This happened guys, this happened because the power should not remain in the hand of few people. In the new contemporary world, आज के टाइम में पावर शेयरिंग किसी एक के हाथ में नहीं होती, पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए और ना होती है. बिकॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव द राइट टू फाइट द इलेक्शन, और वो इलेक्शन जीत कर आज ये पार्टी कल कोई और पार्टी अपनी नई आइडियोलॉजी के साथ कंट्री को रूल करती है. तो ऐसा होना बहुत जरूरी है. इससे सिर्फ एक ही तरह के लोग कंट्री को रूल नहीं कर पाते और पावर धीरे धीरे सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी आती है.
ओके इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन के ग्रुप हो गए, फार्मर्स के ग्रुप हो गए, वर्कर्स के ग्रुप हो गए, इनके हाथ में भी थोड़ी पावर होती है। बाय द नंबर ऑफ पीपल, जो इनका ग्रुप का जो नंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके थ्रू ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, इसीलिए इनको प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजन इन देयर फेवर। तो थोड़ी सी पावर गवर्नमेंट के अंदर, कंट्री के अंदर इनके हाथ में भी होती है। ओके सो दिस इज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द कंट्री। So guys, there are 4 type of power sharing arrangement, या हम कहें forms of power sharing. Number 1, the power is shared among the different organs of the government. Number 2, at the different levels of the government. Number 3, among the different social groups. Okay, and number 4, the power sharing among the different political parties, interest group, pressure group, या हम कहें movement groups. Okay, so this is how the power is shared among the different people. Here I bring to the end of this topic, forms of power sharing. I hope you are able to understand everything. If you have any doubt guys, do write in the comment box. I will try to answer as soon as possible. आप देख रहे थे जियो विद मधुर guys. Enjoy and bye bye.